بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سینئر وزیر شجل انعام ایمن نے ایک بار پھر منشیات کی لعنت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سب سے تعاون کی اپیل بھی کر دی۔ انہوں نے ایلیٹ کلاس میں کوکین کے بڑھتے استعمال پر اظہار تشویش کیا۔ منشیات کے بطور فیشن استعمال کا شکوہ بھی کر ڈالا۔ بولے نشاندہی پر ہر صورت کارروائی کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے 2952 پینشنرز کو تیار چیک فراہم نہیں کیے۔ آڈیٹر جنرل پاکستان نے 2020 اور 2021 کی اسٹڈی رپورٹ میں انکشاف کر دیا۔ رپورٹ سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی۔ عاجز جمالی کی تفصیلات رپورٹ میں دیکھیے۔ سیوریج بورڈ کا ریٹائرڈ ملازمین کے ساتھ فراڈ، 2952 پینشنرز کو تیار چیک بھی تقسیم نہیں کیے گئے۔ 13 کروڑ 97 لاکھ کے چیک تیار تھے۔ 1 ارب 80 کروڑ روپے ملازمین کو دینے کے بجائے نجی بینک میں منتقل کیے گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے 10,384 ملازمین ہیں۔ غیر قانونی طور پر ملازمین کی ترقیاں کر کے ادارے پر مالی بوجھ ڈال دیا گیا۔ جی پی فنڈز کے لیے 597 اور پینشن فنڈز کے لیے بھی 597 ملین روپے مختص کیے تھے۔ گروپ انشورنس کے لیے 43 مالی امداد کے لیے اور 93 ملین روپے مختص تھے۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کی 2020 اور 2021 کی اسٹڈی رپورٹ سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی۔ پینشنرز کو رقم کی ادائیگی میں سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی۔ وفات پانے والے ملازمین کو 69 ملین روپے کی ادائیگی میں تاخیر کی گئی۔ ریٹائرڈ ملازمین کی سروس بک میں ٹیمپرنگ کی گئی۔ آڈیٹر جنرل نے متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی۔ بینکوں کے باہر بھی ڈاکوؤں کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری۔ سائٹے تھانے کی حدود میں بینک کے باہر ڈاکوؤں کی شہری سے 15 لاکھ روپے لوٹنے کی کوشش۔ مزاحمت پر سیکیورٹی گارڈ زخمی، ڈاکو 2 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھیں۔ ڈاکوؤں کو قانون کا خوف نہ رہا، دھڑلے سے وارداتیں کرنے لگے۔ دن دہاڑے بینکوں کے باہر لوٹ مار، میٹرو ویل کے قریب ڈکیتی، مزاحمت پر سیکیورٹی گارڈ زخمی سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ عبداللہ نور نے بتایا کہ 2 موٹر سائیکلوں پر 2 ڈاکو آئے، بینک کے باہر روکتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ ایک ڈاکو نے ماسک لگایا ہوا تھا۔ 2 بندے تھے وہ، تو ایک نے مجھے آواز دیا کہ یہاں پہ رک جاؤ، تو میں گاڑی کے پیچھے کیا، میں نے اپنا ویپن ریلوڈ کیا۔ جیسے ان کو پتہ لگا کہ یہ تو مارنے والا ہے، تو اس نے پھر وہ ایک بندے، وہ میرا بندہ بھی مذمت کر رہا تھا، دوسرا گارڈ والا، اس سے پیسے چھینے، اس کو گولی مارا اور پھر مجھے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ متاثرہ شہری اور ڈسٹریبیوٹر مینیجر بابر نے کہا آج پیسوں کی ڈسٹریبیوشن کا دن تھا، علاقے میں پولیس گشت پر نظر نہیں آئی۔ 15 لاکھ روپے میں سے 13 لاکھ سیکیورٹی گارڈ نے بچا لیے۔ ڈاکو 2 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ اصل میں سیٹرڈے کا ہمارا ڈسٹریبیوشن کا کام ہے، تو ہمارے پاس کیش کی بلک کوانٹٹی جمع ہو جاتی ہے، تو ہم منڈے کو صبح میں یہاں پہ جاتے ہیں بینک میں ڈپازٹ کروانے۔ تو جیسے ہی میرے 2 گارڈ 2 وین کے ساتھ جب ڈپازٹ کرانے کے لیے گئے تھے، تو جیسے ہی گاڑی سے یہ نیچے اترے، 15 لاکھ کی اماؤنٹ تھی، تو پیچھے سے 2 حملہ آور آئے پسٹل لے کے، تو انہوں نے ان پہ حملہ کیا ہے۔ تو میرے گارڈ نے مزاحمت کر کے تقریباً 13 لاکھ روپے اماؤنٹ بچا لی اور 2 لاکھ روپے وہ چھین کے فرار ہو گئے۔ زخمی سیکیورٹی گارڈ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے جائے وقفہ سے شواہد اور CCTV کی مدد سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ کیمرہ مین جہاں زیب کے ساتھ انوشا جعفری، City 21 نیوز، کراچی۔ اب آپ کو بتائیں سندھ کے مختلف اضلاع سے بچوں کو کراچی لا کر فروخت کرنے کا انکشاف۔ پولیس نے 8 ماہ کی بچی کو فروخت کرنے میں ملوث میاں بیوی گرفتار کر لیے۔ SSP کیماڑی کے مطابق ملزمان بچی کو 2.5 لاکھ روپے میں خرید کر لائے تھے اور بے اولاد افراد کو 8 لاکھ روپے میں فروخت کر رہے تھے۔ انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھیں۔ غربت کا بہانہ یا بے حسی کی انتہا، اندرون سندھ سے نومولود بچی خرید کر کراچی فروخت کے لیے لائی جانے کا انکشاف۔ کیماڑی پولیس نے پاک کالونی میں کارروائی کے دوران میاں بیوی کو دھر لیا۔ SSP کیماڑی کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ دونوں اندرون سندھ میں لیڈی ہیلتھ ورکر سے 2.5 لاکھ روپے میں نومولود بچی خرید کر کراچی میں 8 لاکھ روپے میں فروخت کرنے آئے تھے۔ دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ میاں سرکاری ادارے کا ملازم جبکہ بیوی بھی گریجویٹ ہے۔ انٹروگیشن ہم نے کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جو بچی ان کے پاس سے ہمیں ریکور ہوئی، تقریباً وہ آپ کہہ لیں 6 سے 7 دن کی بچی ہے، جو کہ یہ ٹھٹھا سے سجاول ٹھٹھا سے لے کر آئے تھے، اور یہاں پہ کراچی میں آسما نامی ایک عورت ہے جس کو 8 لاکھ کی عوض انہوں نے دینی تھی۔ پھر اس نے یہ بھی اپنا انکشاف کیا اپنا انٹروگیشن میں کہ یہ بچی انہوں نے سجاول سول ہاسپٹل سے ایک تسلیم نام کی ہیلتھ ورکر ہے، اس سے 2.5 لاکھ روپے میں خریدی ہے، اور آگے اس نے 8 لاکھ میں آسما نامی عورت جو کراچی میں
बे औलाद औरत है, उसने डिमांड की थी, तो इन्होंने उसको ये हैंड ओवर करने के लिए कराची में मियाँ बीवी आए थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन किमाड़ी ने भी 21 अक्टूबर को मेट्रोविल कब्रिस्तान के करीब सिंदूक से मिलने वाली खातून की लाश का मुअम्मा हल करने का दावा किया। बताया कि कत्ल में मुलव्विस मकतूला के शौहर के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया, जिसने एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम के मुताबिक वो मकतूला के अखराजात पूरे करता था और उसे शक था कि मकतूला की दीगर के साथ भी दोस्ती है और मकतूला उसे कुछ अरसे से पैसों के लिए तंग कर रही थी। मुलजिम का अरेस्ट करने के बाद जो एतराफ़ सामने आया, वो कहता है कि वक़ूअ के रोज़ उसने 11 बजे मकतूला को बुलाया, जो कि 3 बजे उसके पास पहुंची और इसी पे तकरार और झगड़ा शुरू हुआ और कुछ पैसे की भी बात थी, क्योंकि ये खर्चा उठाता था उसका और कुछ कर्जा था इस मकतूला के ऊपर, और जो कि उसे बार बार उसको तंग कर रही थी कि मुझे पैसे दिए जाएँ, जिस पे तंग आके उसने उसका गला दबा के उसको मारा। पुलिस हुक्काम का दावा है कि डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में मंशियात फरोशों के नेटवर्क के खिलाफ भी मौसर एक्शन किया जा रहा है। बैंकों के तरफ होने वाली कैश छीनने की वारदातों की रोकथाम के लिए साइट एरिया में पुलिस का खुसूसी सेल मुतहरिक कर दिया है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस का क़याम, सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी और MQM अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। 123 अरकान की हिमायत, 4 की मुखालफत। वज़ीर दाखिला का स्ट्रीट क्राइम की शरह में 26% कमी का इंकशाफ। शर्जील इनाम मेमन का लियारी समेत शहर भर में मुनिशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। आजिज जमाली की रिपोर्ट। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की जेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने 26वीं आईनी तरमीम पर सूबे में अमल की करारदाद पेश की। 123 अरकान ने खड़े होकर करारदाद की हिमायत की, 4 मेंबरान ने मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने करारदाद के बारे में खिताब करते हुए कहा कि ये आईनी ज़रूरत है। करारदाद की मंजूरी से सूबे में 26वीं तरमीम पर अमल शुरू होगा। JCP बन गई है और हमारी यही दरख्वास्त होगी और हम अब लिखेंगे भी फेडरल गवर्नमेंट को, और मैंने लॉ मिनिस्टर साहब से कहा है वो रिव्यू भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट से और JCP से कि जल्द से जल्द सिंध की मीटिंग बनाई जाए ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने और हमारे जो साइलिन है, जो इसका मकसद था 26वीं आईनी तरमीम का, कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले। सिंध असम्बली में लियारी के रुकन सज्जाद अली सुमरो ने कहा कि लियारी में मंशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एक अस्पताल के नीचे मंशियात फरोशों ने अड्डा बना लिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वो रुकन सिंध असम्बली के साथ लियारी में जाकर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। जो भी नार्कोटिक फोर्स उसको बुलाता हूँ, ये आपका फर्ज है, आपने अच्छा काम किया, आप निशानदेही की कि चल रही है, आपको ये फोन करके हमें बताना चाहिए, हम साथ चलेंगे वहां पे। ये सब पूरी असेंबली सुन रही है और देखते को कौन चला रहा है और किस तरह चला रहा है। असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम में 26% और मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में 23% कमी हुई है। वजीर सेहत अजरा पेचुओ ने पोलियो केसेस के बारे में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कहा कि सूबे भर में आगाही मुहिम चलाई जा रही है। बाद अज़ां डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद ने गवर्नर सिंध का हुक्म पढ़कर सुनाया और इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। कराची पुलिस चीफ का ज़ेरे तामीर मॉडल थानों का दौरा। शार फैसल, अवामी कॉलोनी और गडाफ सिटी में तामीराती कामों का जायजा लिया। रिपोर्टिंग रूम, लॉकअप और दीगर रूम्स का भी दौरा किया। DIG ईस्ट असफर महेसर भी जावेद आलम ओढो के हमरा थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि KMC महकमा इंसदाद तजावुज़ात न्यू कराची के 7000 रोड के बरसाती नाले पर ऑपरेशन शुरू न हो सका। मुतासरा दुकानदार ने एहतजाज खत्म करके दुकानें दोबारा खोल ली। मुतालबा किया कि इन्हदामी कार्रवाई से कबल मुतबादिल जगह फराम की जाए। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। दुकानें टूटी, न इंसदाद तजावुज़ात का अमला पहुंचा। न्यू कराची के 7000 रोड के मुतासरा दुकानदारों ने भी सूरत हाल भांपते हुए एहतजाज खत्म करके दुकानें खोल ली। मुतालबा दोहराया कि इंतहामी कार्रवाई से कबल इन्हें मुतबादिल फराहम किया जाए। हमारा मुतालबा सिर्फ मुर्तज़ा वहाब साहब से इतना है कि पहले हमारे कारोबार का बंदोबस्त कर दिया जाए। हम गरीब दुकानदार हैं, अगर ये दुकान को मुनहदिम कर देते हैं और अगर 6 महीने 8 महीने प्रोसेस में लग जाते हैं तो हमारी रोजी रोटी का जरिया क्या है हमारे पास? जगह हैं यहाँ पर मौजूद, लाल मार्केट है, काली मार्केट है, 11E के अंदर मार्केट है जहाँ कब्जा किया हुआ लोगों ने, वो खाली करवा के दी जाए।
के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, हम उन पर हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हम उस पर यकीन रखते हैं, हम उनके अहकामात को हम मानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम कब्जा माफिया नहीं। दूसरी जानिब शहरी कार्रवाई न होने पर मायूस दिखाई दिए। बोले बरसाती नालों से निकलने वाले पानी ने घर डुबोए और सड़कें तबाह की। जानी और माली नुकसान मामूल बना हुआ है। इतने एक्सीडेंट रोज के होते हैं, आप 1100 दुकानदारों को खुश करने के लिए 11 लाख आवाम को जो ना आप पीस रहे हो। का हल ये है कि इनको कोई जगह दी जाए मुतबादिल, कम से कम जगह दी जाए मुतबादिल। बाकी ये जो परेशानी है ना, ये तो हम सबकी है कि नाले साफ हों, क्लियर हों, ये होना चाहिए। जराए ने बताया कि वाज़े ऐलान के बावजूद ऑपरेशन न होने की वजह मामले का सियासी शक्ल इख्तियार कर जाना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुतासिरा दुकानदारों के लिए मुतबादिल जगह तलाश करने का हुक्म दे दिया गया है। ये ऑपरेशन पहले भी 5 मरतबा मुलतवी किया जा चुका है और 6ठी मरतबा भी सूरत हाल वाज़े नहीं। कैमरामैन शाजेब रजा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। बिजली की 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग, हिजरत कॉलोनी के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। इलाका मकीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए, मुतालबा ना माना गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। घंटों की लोड शेडिंग ने हिजरत कॉलोनी के मकीनों का पारा हाई कर दिया। इलाका मकीन सड़कों पर आ गए कि इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। इलाका मकीनों ने कहा कि दिन में 12 घंटों तक लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। बिजली चोरी को खत्म करना के इलेक्ट्रिक का काम है। लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हुआ तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे एरिया में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ठीक है, हम लोग प्रॉपर बिलिंग करते हैं, प्रॉपर बिल पे करते हैं, उसके बावजूद भी हमें इस अजियत से गुजरना पड़ता है। हम बार बार जो है ना KEC के ऑफिस आते हैं कि भाई हमारी लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। इनका ये कहना है कि आपके एरिया में रिकवरी नहीं आ रही हमें। के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि यहाँ पे चोरी है, तो मैं के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से ये सवाल करूँगा कि सर देखिए, अगर चोरी एक गली में अगर 400 घर हैं, अगर बकौल के इलेक्ट्रिक के 100 घर चोरी करते हैं तो बाकी 300 घरों को किस चीज़ की सजा दी जा रही है। तो ये चोरी पकड़ना के इलेक्ट्रिक का काम है, ये कोई गांव देहात नहीं है। ये हिजरत कॉलोनी की मतलब हिजरत कॉलोनी की आबादी है, जिसके अकब में CM हाउस है, गवर्नर हाउस है, अमेरिकन कॉन्सुलेट है। चलो गांव देहात होता फिर भी समझ आती है, उसके बावजूद यहाँ पे जुल्म की इंतहा इन लोगों ने बर्पा की हुई है। इनका ये एक सवाल कि वहाँ चोरी हो रही है, चोरी हम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं चोरी? वो आपका काम है। 10 घंटे लोड शेडिंग होती है, कम से कम 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है, जिससे हमें पानी का इश्यूज हो रहा है और सुबह हमारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो घर पे लाइट नहीं होती। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत का कहना है कि दरखास्तें मुस्तरद करने की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। गुलशन इकबाल से 9 गुमशुदा तलबा की बाजियाबी में अहम पेशरफ सामने आ गई। मज़ीद 7 लापता तालिब इल्म वापस आ गए। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने वापस आने वाले तालिब इल्मों और दरखास्त गुजार को पुलिस तहकीकात में ताउन की हिदायत कर दी। अदालत ने तालिब इल्म हनीफ की बाजियाबी के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत भी कर दी। रानीपुर में कम सिन बच्ची फातिमा से जिनसी ज्यादती, तशद्दुद और हलाकत केस सिंध हाई कोर्ट में आज खुद नोटिस पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने केस वापस ATC खैरपुर भेज दिया। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से जिनसी ज्यादती और तशद्दुद से हलाकत की तस्दीक हुई थी। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए सिटी कोर्ट में सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम फातिमा जमाल मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन ने कराची बार के ताउन से किया। तफसीलात जवाद आसिफ की इस रिपोर्ट में। सिटी कोर्ट में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए सेमिनार मुनक्किद किया गया। इवेंट फातिमा जमाल मेमोरियल और अरमगान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कराची बार के ताउन से हुआ। फातिमा जमाल मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हुमा जमाल ने कहा कि ऐसे सेमिनार का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर से मौत की शरह में इजाफा हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसका अगर पाकिस्तान में रेशो देखा जाए तो वो बढ़ता जा रहा है, जिसके नतीजे में अमवात तो हो रही हैं लेकिन ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। बीइंग अ वुमेन मैं समझ सकती हूँ कि जब ये मर्ज़ किसी खातून को लाहक हो जाए तो पाकिस्तान के माहौल में उसको पहले ही स्टेज पर बता देना एक खातून के लिए बहुत ही ज़्यादा सब्र आज़मा मरहला होता है।
अरमगान मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी आमिर जकी का कहना था कि इस मौजू पर बात करना निहायत ज़रूरी है। मेरी जो रिकमेंडेशन है, मैं जो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा तमाम ख़वातीन से कि जहाँ वो थोड़ी सी ज़्यादा एज की, लाइक उनके अगर 40+ हो जाता है तो अपना वो एक रेगुलर डायग्नोस करवाएं, डॉक्टर से मिलें, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं। प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने सैर हासिल गुफ्तगू की। प्रोग्राम में वकला समेत समाजी तंजीमों के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन ताबिश के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। एक मरतबा फिर बात करेंगे कारोबारी दुनिया के हवाले से। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1078 पॉइंट्स का इजाफा 91,938 पर बंद हुआ। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1078 पॉइंट्स का इजाफा 91,938 पर बंद हुआ।